Okay, previous class we understand qualitative characteristics of financial statements. Now next is elements of financial statements. In this we have to understand certain definitions. Okay, so first is asset. So what is the meaning of asset? So asset means it is a resource controlled by an enterprise, and from this resource future economic benefits are expected to flow. Means asset is a resource. Resource means it can be utilized for generating the revenue, and on this resource enterprise should have the control. If others are having the control, there is no benefit to the organization. So enterprise should have control, and from this resource future economic benefits will flow. So in future some economic benefits will come to the company. If this is satisfied, then it is termed as asset and it is recorded in the financial statement. Suppose if there is no resource, future economic benefits are not coming, then that is not treated as asset and not recorded in books. So compulsory asset should be a resource, and from this resource future economic benefit should flow, and for this resource organization we should have control. Example, suppose you purchase one asset on hire purchase system. On what? Hire purchase system. So hire purchase system you purchase the asset means ownership is transferred, or ownership is transferred after payment of all installments. After payment of all installments, ownership is not transferred immediately. So legally the person who purchased the asset on hire purchase is not owner, only is a user, only is a user. But asset is in whose control? User. The vendor who sold, asset is not in the control of vendor, asset is in the control of user. Means user will use that asset now, that's why asset is in the control of user. Next, to whom future economic benefits will come? User or vendor? User. That's why user can record this asset in the balance sheet. User can record this asset in balance sheet. So when user is preparing the financial statements, in the financial statement he can disclose asset, even it is not owned by him, even it is not owned by him. So this is the important point. Ownership is not important here. Even he is not legal owner, he can recognize that item as an asset. So asset means generally property it is, but in accounting standard that is not sufficient. In accounting standard we need to understand complete coverage here. So asset is a resource controlled by an enterprise as a result of past events from which future economic benefits are expected to flow to the enterprise. Okay. Future economic benefit means what? Cash resources. Future economic benefit means what? Cash resources. So this can flow directly or indirectly. So organization can receive the cash by using the asset for producing and providing the goods and services, selling of asset, exchange, by settlement of liability, by contributing to the owners. So these are the various ways in which organization can get the future economic benefit. It means they will use the asset for producing the goods or rendering the service. From that benefit will come. Sometime if asset became obsolete, asset will be sold. If they are purchasing one more asset and exchanging this asset, there is a new asset coming. Sometime liabilities are settled. So for settlement of liabilities also asset will be used. So in all this way benefits are coming. That's why future economic benefit is very important. If there is no future economic benefit, asset is not recorded in books. Example, suppose one company will have vacant building. Okay, in this building nobody is there, and no tenant is coming in this building. Clear?
एक चंद्रमुखी बिल्डिंग है समझो ये, ओके भाई इसमें चंद्रमुखी नाम की कोई भूत रहती है समझो, तो nobody is taking this building on rent, okay, any reason is not important, suppose building is vacant, so any future economic benefit is coming from this building, no future economic benefit, clear? So in that case this building is not recorded on balance sheet asset side, this building is not recorded on balance sheet asset side, so compulsory future economic benefit should flow to the organization, otherwise it is not recorded in books, okay. Now next is what is asset recognition criteria. What is asset recognition criteria? Means this is the meaning of asset, this is the meaning of asset, okay. Now next is what recognition criteria. When asset is recorded in books, asset is recorded in books when two conditions are fulfilled, when two conditions are fulfilled, compulsory these conditions have to be fulfilled. First condition is future economic benefit, second is cost of the asset can be measured in reliable way, cost of the asset can be measured in reliable way. Cost of the asset can be measured in reliable way means whatever cost we have paid or we have incurred, that can be measurable, that can be measurable, okay. After that these two conditions satisfied, asset is recorded in the books of accounts. Suppose if there is no future economic benefit, it will not be recorded. If cost is not properly measurable, in that case also it is not recorded, clear? So both should be compulsory to satisfy it, then only it is recorded in books of accounts. So these are the conditions for recognizing the asset in books of accounts, okay. Suppose one asset is there whose cost is not measurable, you don't know what is the exact cost and it is not having any hint also to calculate, so in that case asset is not recorded immediately, when measurement is possible at that time only it is recorded, understand? This example is on deferred expenditure, this example is on deferred expenditure. Suppose X Limited launching a new product and spend 2 crores for opening ceremony and initial advertisement of the product X. Sorry, product X Limited would account this as deferred revenue expenditure and charge profit and loss account over a period of 5 years. Means X Limited has incurred 2 crore rupees expenditure on opening ceremony and advertisement. Now this 2 crore rupees they want to defer. Means in 5 years they want to charge in P&L. Every year 1/5 amount. Every year 1/5 amount. Remaining amount they want to show in balance sheet. So yesterday only I explained that whenever organization incurs any expenditure, that expenditure does not satisfy the definition of asset, then that item will not come in balance sheet. Directly it is charged to P&L. So advertisement expenses incurred will give the future economic benefits? No. There is no assurance that future economic benefits will come. Future economic benefits will come in, that is any assurance from advertisement? Advertisement से future economic benefit आ सकते बल्कि guarantee है क्या? No. That's why here advertisement is not shown in the balance sheet assets. It is charged to P&L. It is charged to P&L. तो ये सब P&L में चले जाएगा. Entire 2 crores is charged to P&L. So we cannot show this an asset on balance sheets asset side. तो किस में डालना पड़ेगा ये? P&L में. यही पूरा कल एक्सप्लेन कर दिया आपको ये. Any doubt in this? ये एग्जाम्पल भी कल समझा दिया आपको. Substance over form. Substance over form. Yesterday already explained. Suppose if building is sold, token money received, but title deeds are not transferred, still building is
in the name of existing owner only on balance sheet date, but later on building will ultimately transfer to purchaser, but on balance sheet date still existing person is owner of the building, so he is showing this building on asset side. So that is correct treatment? No. According to substance over form, they should not disclose. क्यों नहीं डिस्क्लोज कर सकते भाई? क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं आते उसको फ्यूचर में. बिल्डिंग क्यों नहीं शो कर सकता असेट में? नो, सब्सटेंस और फॉर्म के हाई है, लेकिन फ्यूचर में उसको बेनिफिट आएंगे अब, क्योंकि उसका ओनरशिप किसके पास चले गया? परचेजर के पास चले गया. सो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल नॉट कम. इसलिए बिल्डिंग बैलेंस शीट में नहीं आएगा. रिकॉग्निशन का मतलब क्या है? बैलेंस शीट में लिखना, नहीं लिखना. So when it will come in balance sheet? When future economic benefit will come. So when you sold building, future economic benefits will come? No, so you cannot write building on asset side. Very simple. So it will not come in balance sheet now. तो बैलेंस शीट में वो नहीं आएगा सब्सटेंस और फॉर्म के कारण, क्योंकि ओनरशिप इज नॉट इंपॉर्टेंट. सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन इज इंपॉर्टेंट. इन फ्यूचर बेनिफिट्स विल नॉट कम. So when future economic benefits will not come, building is not recognized. तो रिकॉग्निशन कंडीशन क्या है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आना, उसका कॉस्ट भी मेजरेबल रहना. तो कॉस्ट इज मेजरेबल, नो प्रॉब्लम, बट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कमिंग हियर, नो. इसलिए बिल्डिंग विल नॉट शोन ऑन दी बैलेंस शीट एसेट साइड. अंडरस्टैंड? आ रहा है समझ में कुछ? तो ये असेट का एक्सप्लेनेशन है. असेट को इस तरह से पढ़ना पड़ेगा आपको एएस में. इन दिस वे यू शुड अंडरस्टैंड दी असेट इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क. चलिए नेक्स्ट इज लायबिलिटी. लायबिलिटी का मतलब क्या है? यस, okay. So liability means generally students will say obligation, right? The answer is correct, but in accounting standard some advanced explanation is given. Obligation means what kind of obligation? Possible, present, what type of obligation? Obligation can be present also, obligation can be possible also. Possible obligation will be contingent liability. Present obligation means it is a current liability or balance sheet date liability. So in liability explanation, accounting standard has used present obligation word. What word? Means the date on which you are preparing the financial statement. On that date, any obligation is there or not? That is important. The date on which you are preparing balance sheet, on that date if any obligation exists, that is important for deciding that should come in balance sheet or not. Clear? On balance sheet date if there is no obligation, in future there may be a possibility of obligation, then it will not come in balance sheet. It will be shown in footnotes as contingent liability. It will be shown as contingent liability in the footnotes. That's why in definition present obligation word will used. So liability is a present obligation arising from past events whose settlement require outflow of resources in future. So liability is a present obligation arising from past events whose settlement require outflow of resources in future. So liability is today's obligation, the date on which you are preparing the balance sheet. On that date there is an obligation on company or enterprise, and this obligation is arising because of past events. So previously they purchased material, previously they have taken some services but not paid the amount. Clear? So because of that this obligation arised, and in future if they settle this liability, resources will outflow or not? The resources outflow होंगे नहीं होंगे? Then it is satisfying the definition of liability. Then it is satisfying the definition of liability. ये उसका है present obligation arising from past events, settlement require outflow of resources. Outflow of economic benefit बोलो या resources बोलो एक ही बात है. Outflow of resources or economic benefit meaning is same. Okay. So recognition criteria क्या है इसका? Liability का recognition criteria क्या रहता है? Generally probable economic benefit outflow, an amount of settlement can be measured
reliably. So probable economic outflow. Probable economic outflow. Probable means what? More likely than not. Probable का मतलब क्या रहता है? More likely than not. More likely than not means what? Possibility of happening is 50% or more than non-happening. आ रहा है समझ में जो बोल रहा हूं मैं? लाइबिलिटी के अकर होने के चांसेस 50% या उससे ज्यादा है अकर नहीं होने के कंपैरिजन में. तो कोई भी लाइबिलिटी का अकर होने का चांस अगर 50 या उससे ज्यादा है तो ही बैलेंस शीट में लिखते हैं उसको. इफ द परसेंटेज इज लेस देन 50 इट विल नॉट कम इन बैलेंस शीट. So any liability will come in balance sheet when whose happening factor is 50% or more than non-happening factor. Clear? Then only it will be treated as liability. Otherwise it is not treated as liability. If possibility of occurrence is less than 50%, then it is not present obligation. फिर क्या बन जाएगा वो? पॉसिबल ऑब्लिगेशन. इट विल बी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी. इट विल बी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी. तो 50% और मोर रहना चाहिए तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. इफ इट इज लेस देन 50% पॉसिबल ऑब्लिगेशन देन इट विल बी ए कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी. इट विल बी ए कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी. ये पूरा अच्छे से सुनो आप. ये पूरा अच्छे से पढ़ेंगे. इंटरव्यूज में काम आएंगे आपको. ये इंटरव्यूज में क्वेश्चंस पूछते वो लोग. कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी क्या रहता, करेंट लाइबिलिटी क्या रहता है, सब पूछते वो लोग फिर. सो ऑलवेज द लाइबिलिटीज विच इज रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट उस प्रोबेबिलिटी इज 50% और मोर एंड कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 50% रहता है. क्या रहता है? लेस देन 50%. दैट्स व्हाई प्रोबेबल वर्ड इज कमिंग हियर. So liability recognition criteria is what? First there will be a probable economic benefit outflow. मीन्स 50% या उससे ज़्यादा संभावना है कि वो लाइबिलिटी को सेटल करे तो आपका रिसोर्सेज आउटफ्लो हो जाएंगे. और वो लाइबिलिटी का मेजरमेंट भी रिलायबल रहना. अमाउंट ऑफ सेटलमेंट कैन बी मेजर्ड रिलायबली. व्हाई दिस सेंटेंस इज कमिंग? सी, सपोज देयर इज ए डिस्प्यूट. एनी मैटर इज इन डिस्प्यूट एंड दैट शुड बी डिसाइडेड बाय कोर्ट और दैट विल बी डिसाइडेड बाय कोर्ट ऑर्डर. एंड इन दैट amount will be decided by court itself. Either the person who filed the suit, that person is also not able to decide, or the person who is defending the suit, that person is not able to decide amount. Court of law will decide the amount. So suppose one person has done the infringement of law. एक person जो है infringement कर दी है law में, and that person is generally thinking कि court will charge the penalty. Court will charge the penalty. So from his point of view, he is thinking कि I have to pay this amount. This is a liability for me. But how much amount he has to pay, if he does not know, he will record that amount in balance sheet. That's why it will not come in balance sheet. Ultimately, this is after court order decided. And court will give some time also. Within this time, you have to settle. So in those cases, he know the liability. But amount of liability is not measurable, na? He can imagine by previously same type of matters how much amount is decided by court. But in this particular case also same amount will be decided? No, not possible, na? Court can decide different amount also. That's why we cannot record liability. Suppose the chartered accountant of that person is advising, no, in previous cases 5 lakh rupees penalty was decided, so you should write 5 lakh rupees in your balance sheet as liability. It is not correct because we cannot measure the liability in reliable way. Reliable का मतलब क्या है? इस पे अपन भरोसा कर सकते हैं. अब 5 लाख रुपए सीए बोल दिए भाई आप लिख दीजिए बैलेंस शीट में, तो उस पर भरोसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि सीए जजमेंट थोड़ी करने वाला है, वहां पर जज करने वाला है ना कोर्ट का. इसलिए वो 5 लाख रुपीज अपन बैलेंस शीट में नहीं लिख सकते. क्यों? अमाउंट कैनॉट बी मेजर्ड इन रिलायबल वे. अमाउंट कैनॉट बी मेजर्ड इन. अब सीए भरोसा दे रहा है उसको, नहीं मैं 10 केसेस देखा हूँ प्रीवियसली हैव सीन 10 केसेस and have seen different international cases also. So on an average, judge will charge
10 lakh 5 lakh rupees penalty only. So I can assure that beyond this judge will not charge anything. जब भरोसा कर सकते हो उस पर आप, तो सीए क्या कर रहा है, एश्योरेंस दे रहा ना वहां पर, एग्जैक्ट अमाउंट ही कैनॉट एश्योर बट इन बिटवीन दिस फिगर देयर इज ए पॉसिबिलिटी, उसको बोलते हैं चलिए रिलायबल, देन यू कैन राइट, अदरवाइज यू हैव टू वेट टिल कोर्ट ऑर्डर. अब कोर्ट ऑर्डर तक वेट करना है, कोर्ट ऑर्डर के बाद ही पेमेंट करना है, तो फिर जब तक कहाँ पे आएगा वो कॉन्टिजेंट में आएगा. कहाँ पे आएगा, कॉन्टिजेंट में आएगा. अब सीए जो फिगर बोल रहा है वो भरोसा कर सकते हैं क्योंकि उस पर तो ट्रस्ट है, तो फिर कहाँ लिख सकते हैं उसको, आप बैलेंस शीट में लिख सकते हैं आप. इसलिए ये वर्ड आ रहा है, अमाउंट कैन बी मेजर्ड इन रिलायबल वे. ओके, आप क्या अभी तक जो पढ़ के आए अकाउंटिंग, अभी सोचे ना लाइबिलिटी ऐसा रहता है क्या बोल के. लाइबिलिटी के पीछे भी बहुत बड़ा जन्म कुंडली है उसका, क्योंकि वो सेटिस्फाइड होने पर लाइबिलिटी लिखते हैं आप. Occurrence factor less than 50, liability will not come in balance sheet. Occurrence factor should be more than 50%. An amount can be measured in reliable way. Both should be satisfied. Then only it is recorded. Otherwise, you have to wait. It will shown in footnotes as contingent liability. And when it is confirmed, or when it is more than 50%, at that time only it is recorded in balance sheet. Understand? So less than 50% है, अमाउंट मेजरेबल नहीं है, तो कहां पर दिखाना उसको, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज. कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज, अंडरस्टैंड. इन AS 29 यू विल अंडरस्टैंड दिस, डोंट वरी. कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी कहां समझ में आएगा आपको, AS 29 में आएगा आपको. नेक्स्ट इज इक्विटी. Equity means students will think equity is share capital. Okay, something is correct but not 100% correct. Equity means what? Equity को समझना है, सिंपल एग्जाम बता तो सुनिए. If you want to understand equity in simple words, I will explain. Suppose you have family of your parents, spouse, 2 children. Now you are bringing one ice cream, chocolate ice cream or any vanilla ice cream or any flavor ice cream. So first you will serve to your parents. क्या आते पहले अपन खा लेते क्या? First you will serve to your parents. Thereafter your spouse, children. बाद में कुछ बचा तो residuary ice cream will goes to means your account. रेसिडुअरी आइसक्रीम मीन्स कुछ बच गया तो अपने को मिलेगा, नहीं तो अपन क्या करना है, फिर खामोश बैठ जाना है वहां पर. तो इक्विटी का मतलब भी है रेसिडुअरी इंटरेस्ट. कंपनी में सबका पैसा जहां का वहां होने के बाद जो बच जाता वो किसका रहता, इक्विटी शेयर होल्डर का. उसको बोलते हैं इक्विटी. तो क्या बोलेंगे उसको, इक्विटी. बिकॉज इन कंपनी सो मेनी डिफरेंट इन्वेस्टर्स आर देयर, डिबेंचर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्लियर, अदर प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस. So after making all payments to them, ultimately how much amount of assets available for equity shareholder, that is called as what, equity. Suppose if company is liquidated today only, आज ही कंपनी का दिवालिया निकल गया, एग्जाम्पल. तो फर्स्ट यू हैव टू पे टू डिबेंचर होल्डर, पहले किसको पे करना, देन यू हैव टू पे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसके बाद कुछ बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर. तो लास्ट में जो बचेगा वो किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर. तो उसको बोलेंगे इक्विटी. रेसिडुअरी इंटरेस्ट, एंड में जो बचेगा वो अपने को मिलेगा, रेसिडुअरी इंटरेस्ट. तो इक्विटी इज द रेसिडुअरी इंटरेस्ट इन नेट असेट्स. नेट असेट्स का मतलब असेट्स माइनस लाइबिलिटीज. तो आफ्टर सेटलमेंट ऑफ ऑल लाइबिलिटीज इन टोटल असेट्स माइनस ऑल लाइबिलिटीज, नेट असेट्स विल कम. तो इन नेट असेट्स आफ्टर मेकिंग पेमेंट टू ऑल पार्टीज, डिबेंचर होल्डर का पैसा डिबेंचर होल्डर को दे दिए, लोन वालों का पैसा लोन को दे दिए, क्रेडिटर का पैसा क्रेडिटर को दे दिए, सबका पैसा जिसका उसको देने के बाद आफ्टर मेकिंग पेमेंट टू ऑल पार्टीज, अल्टीमेटली इन लास्ट हाउ मच अमाउंट ऑफ नेट असेट्स अवेलेबल. प्रॉफिट की बात नहीं है यहाँ पर, क्या अवेलेबल रहना, असेट्स, नेट असेट्स अवेलेबल, दैट विल गोज टू इक्विटी शेयर होल्डर. तो उसको क्या बोलेंगे अपन लोग, इक्विटी. क्या बोलेंगे उसको, इक्विटी. तो इक्विटी इज नथिंग बट
रेसिडवरी इंटरेस्ट, क्या रहता है ये? रेसिडवरी इंटरेस्ट। तो फंड्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ओनर्स एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस रहता है, क्या रहता है ये? फंड्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ओनर्स एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। सपोज वन बैलेंस शीट इज देयर, कंपनी बैलेंस शीट है ये, तो कंपनी बैलेंस शीट जस्ट 1 मिनट, ये कंपनी बैलेंस शीट है बराबर। तो ये नॉन करेंट असेट, इन्वेस्टमेंट, करेंट असेट, शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटी, अदर करेंट लाइबिलिटी है ना, तो इसको बोलते हैं इक्विटी। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज व्हाट? इक्विटी। सपोज यू हैव 280 करोड़ असेट, कितने करोड़ का असेट है? फ्रॉम दिस 280 करोड़ असेट फर्स्ट यू हैव टू पे नॉन करेंट लाइबिलिटीज, पहले क्या सेटल करना पड़ेगा आपको? देन यू हैव टू सेटल current liabilities. So after settlement of these two liabilities, ultimately how much amount is left? That will goes to shareholder. That will goes to shareholders. That's why this is called as what? Residuary interest. So shareholder funds में क्या क्या आएगा? Equity capital, reserves and surplus. Reserves and surplus. देखिए एक्चुअली इक्विटी वर्ड में प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं लिखते अपन लोग इन इंडेस टर्मिनोलॉजी। अब यहाँ पे भी दो टर्मिनोलॉजी है, एक है एएस टर्मिनोलॉजी, एक है इंडेस टर्मिनोलॉजी। एएस टर्मिनोलॉजी में इक्विटी का मतलब रहता है इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। इक्विटी शेयर कैपिटल भी रहेगा इसमें, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी रहेगा इसमें, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी रहेगा इसमें, इक्विटी में, एएस के अंदर। बट इंडेस जब पढ़ेंगे आप, इंडेस में इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस ओनली कॉल्ड एज व्हाट? इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं आते उसके अंदर। क्लियर? तो इन ग्रुप 1 इंटरमीडिएट लेवल यू डोंट हैव इंडेस, so you can consider preference shareholders also part of equity. Preference shareholders also part of equity, but in India's platform preference shareholders are not part of equity. क्यों? बिजनेस के ओनर कौन रहते? इक्विटी शेयर होल्डर। सो अल्टीमेटली व्हाट इज लेफ्ट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर? दैट इज कॉल्ड एज इक्विटी। प्रेफरेंस होल्डर्स आर नॉट हैविंग एनी वोटिंग राइट, दे आर नॉट ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे आर नॉट ओनर्स ऑफ द कंपनी। समझ में आया ना? दिस इज अंडरस्टैंड और शैल आई रिपीट वन मोर टाइम? सो ऑब्लिगेशन टू पे मीन्स अल्टीमेटली equity is residuary interest where entity has no obligation to pay and it is amount left with entity. If it is obligation to pay, it is liability as per definition. Ab you bring the ice cream, you already distributed to parents, you already distributed to spouse and children's. After that ultimately whatever is left that is coming to your account. अब उसके बाद और किसको देना है क्या? तो वही बोल रहा हूँ, पूरों को देने के बाद जो बच गया वो क्या है? इक्विटी। आप किसी को देने की जरूरत नहीं है। तो इक्विटी क्या रहता है? किसी को देने का जरूरत नहीं रहता है। इक्विटी हमेशा क्या रहता है? अपना खुद का पैसा है वो, कंपनीज ओन मनी। ऑन दैट देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू पे एनीथिंग टू आउटसाइडर। दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज व्हाट? इक्विटी। ओनर्स फंड्स, इक्विटी इज व्हाट? ओनर फंड्स। क्लियर? टोटल असेट्स से समझिए। फॉर एग्जाम्पल टोटल असेट्स, टोटल असेट्स आर नॉट बिलोंग्स टू कंपनी. From this they have to pay to debenture holder, they have to pay to creditor, they have to pay to long-term debt borrowings, and they have to pay to preference shareholder. Then ultimately whatever is left that will goes to equity shareholder. But ultimately equity means after payment to all only, ultimately whatever is left that is going to equity shareholder. Okay, so equity नो नीड टू पे अगेन टू एनी पार्टी, खुद का अपना बच गया सो पैसा है वो। क्लियर है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इक्विटी का मतलब अलग रहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इक्विटी का मतलब अलग है, फिर फाइनल में जाने के बाद इंड एस में अलग है।
फाइनल में इंडेस में इक्विटी में प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं डालते वो लोग, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट ओनर्स ऑफ द कंपनी. लाइबिलिटी है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज व्हाट? लाइबिलिटी. वो आप इंडेस 107 109 में पढ़ना पड़ता फाइनल में आपको, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में. ओके, क्लियर? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एक्चुअल में रियल ओनर्स नहीं है, क्योंकि उसको रिडम्पशन करना पड़ता. ध्यान से सुनो. सपोज दिस इज द बैलेंस शीट. इन दिस बैलेंस शीट इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस. पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख देंगे, ठीक है. रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डेट और करंट लाइबिलिटी, ये सब लाइबिलिटीज. असेट साइड, टेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, करंट असेट्स है. ओके, सपोज दिस टोटल इज 500 crores assets पूरा. इक्विटी शेयर कैपिटल 100, रिजर्व्स एंड सरप्लस 50, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50, डेट 100. ओके, एंड करेंट लाइबिलिटी 350 150. तो ये स्ट्रक्चर है बैलेंस शीट स्ट्रक्चर. नाउ फ्रॉम दिस 500 टोटल असेट्स, फर्स्ट वी हैव टू सेटल current liability, then you have to settle debt, then you have to settle preference share capital, and ultimately whatever is left, this is called as what? Equity. ये according to Ind AS है, ये according to Ind AS. अगर आप AS के हिसाब से पढ़े तो फिर ये तीनों आते हैं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के पास से पढ़े तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इक्विटी, बट Ind AS पॉइंट ऑफ व्यू लर्न. तो दोनों में जो कौन सा ज्यादा सही है? Ind AS ज्यादा सही है. Ind AS इज मोर करेक्ट, क्योंकि Ind AS नया आया है ना अभी. Ind AS इज बेस्ड ऑन IFRS. क्लियर? Ind AS इज बेस्ड ऑन IFRS. IFRS लेटेस्ट अमेंडेड अपग्रेडेड है, वो ज्यादा सही है. इसलिए वो लोग जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है. कैसे भाई? देखिए, करेंट लाइबिलिटी का मतलब है पड़ोसी, नेबर. नेबर तुम्हारे घर में कितनी देर तक बैठता? डेट, डेट का मतलब है तुम्हारे रिश्तेदार, रिलेटिव. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब है तुम्हारी बेटी, डॉटर. तो पड़ोसी क्या करता है? आएगा, 2-4 घंटे बैठेगा, चले जाएगा. करेंट लाइबिलिटी, जल्दी जाता हूं. रिलेटिव एक थोड़े दिन रहते वो लोग. और बेटी भी घर पे ही रहेंगे ना, लेकिन हमेशा घर पे रहेंगे क्या? अभी यूएस नहीं बना अपना देश, ये भी जाएंगे ना अब. तो तीनों में कैसा भी बाहर हो रहे नहीं हो रहे, अंत में कौन बच जा रहे? घर वाले बच जा रहे. इसलिए ये लोग इक्विटी में आते हैं. बनाए यूएस वाले, लेकिन टर्मिनोलॉजी इंडियन यूज करे वो लोग. बनाए कौन? लेकिन टर्मिनोलॉजी किसकी यूज कर रहे लोग? इंडियन. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मीन्स डॉटर. डॉटर भी जाना ही एक दिन, बट ज्यादा समय तक आपके पास रहेंगे वो लोग. क्लियर? तो इक्विटी वर्ड इज क्लियर नाउ. नाउ इनकम, एक्सपेंसेस, दो अभी पेंडिंग है आपके पास एक्सप्लेनेशंस. यस, दो पेंडिंग है. चलिए, सो इनकम मीन्स व्हाट अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज? इनकम कब कब बढ़ता सोचो जरा. इनकम कब कब बढ़ेगा? सेल बढ़ने से. वेरी गुड, करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, लाइबिलिटी डिक्रीज होता है. वेरी गुड. असेट इंक्रीज होता है. वेरी गुड. 3 रीजन से इनकम बढ़ता है. वेरी गुड. तो फर्स्ट व्हेन रेवेन्यू इंक्रीजेस, नेक्स्ट व्हेन असेट इंक्रीजेस, व्हेन लाइबिलिटी डिक्रीजेस. तो इससे इनकम बढ़ता तुम्हारा.
अंडरस्टैंड? तो वही लिखे सो यहाँ पर, इनकम इज इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स. इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब है रेवेन्यू बढ़ना. इकोनॉमिक बेनिफिट इज व्हाट? इंक्रीज इन रेवेन्यू. नेक्स्ट, so in the form of what? Inflow or enhancement of assets or decrease in liability. Clear? And one more point also we can cover. Income will increase when equity increases. When equity increases. Equity increases means net profit बढ़ने से reserves and surplus बढ़ता है ना आपका. So in equity what items are coming? Share capital, reserves and surplus. So reserves and surplus increasing means income increasing or not? Because in reserves and surplus what item will be there? Net profit. Reserves and surplus में क्या रहता है? Net profit. So net profit increasing means income increasing. So income is the increase in economic benefit by way of increase in revenue, or by way of increase in equity, or by way of increase in assets, or decrease in liabilities. तो ये उसका definition है. Clear? Next, recognition criteria is what? Increase in future economic benefits रहना, and it can be measured in reliable way. It can be measured in reliable way. कब रिकॉग्नाइज करना वो आप पढ़ेंगे AS 9 में. कब रिकॉग्नाइज करना वो कहां पर पढ़ेंगे? AS 9 में. फाइनल में पढ़ेंगे इन डेज 115 में. इन डेज 115 फाइनल में. इंटरमीडिएट में पढ़ना रहेगा AS 9. AS 9 is related to revenue recognition. Okay? और इन डेज में रहेगा 115. Clear? This is only meaning. Recognition criteria means when it will be recorded. So when it will be recorded means increase in future economic benefit and it can be measured reliably. ये दोनों पॉइंट्स कहां पर समझ में आएंगे आपको? AS 9, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9. Clear? So income includes revenue that is arises from ordinary course like sales, fees, interest, or gains like profit on sale of assets. तो इनकम में क्या क्या आइटम्स आ सकते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इंटरेस्ट और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स. भाई इनकम में क्या क्या लिखते हैं आप लोग? सेल्स भी आएगा. क्लियर? इंटरेस्ट भी आएगा. कुछ असेट्स वगैरह बेचे तो उसका प्रॉफिट भी आएगा. क्लियर? फीस भी आ सकता है इसमें, रेंट भी आ सकता है इसमें. एग्जाम्पल के लिए 2-3 लिखे यहाँ पर, इतने सब आइटम्स आते हैं. तो इन कंपनी बैलेंस शीट इनकम कंसिस्टिंग ऑफ 2 items. One is revenue, another is other income. Company balance sheet when you study, income is break up into 2 parts. One is revenue, another is other income. Revenue means this is from sale. Other income is other than sale. Other income is other than sale. So income में 2 parts आएंगे. Revenue वाला part एक, other income वाला एक. Other income means अब sale को छोड़कर जो भी बच गया वो कहाँ पे गिरेगा? Other income like rent, interest, dividend. Clear? Everything will come in other income. Only sales revenue will come in revenue. तो यहाँ पर भी वही explanation दिया गया है. तो इनकम में क्या क्या आएंगे? रेवेन्यू, अदर इनकम्स. क्लियर? नेक्स्ट, एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ व्हाट? इनकम. क्लियर? तो डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स, देयर इज अ डिक्रीज इन डिप्लेशन ऑफ असेट्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन इक्विटी. डिक्रीज इन इक्विटी. तो जो भी पढ़े भाई इसका पूरा उल्टा करो आप. Previously increase in future economic benefit, now decrease. Previously increase in assets, now decrease. Previously increase in equity, now decrease. Previously increase in assets, now decrease. So these all will results in what? Expenses. Clear? This all will results in what? Expenses. Clear? तो expenses में क्या क्या आएंगे? General expenses, losses. Expenses by default includes what? Losses also.
Clear? Expenses by default includes what? Losses also. So general expenses like cost of goods sold, administration expenses, selling and distribution expenses, ये पूरे किस में जाएंगे? General expenses में. अब losses means when asset is sold there is a loss, or expenses incurred but benefit not derived, that is what? Loss. तो यहाँ पर क्या क्या आइटम्स आएंगे? General expenses, losses. So this is the expenses includes. Now next is recognition criteria. Recognition criteria is similar to this. Here increase in future economic benefit, here decrease हो जाएगा ये. And this is same. Income should be measured reliably, expenses should also measured reliably. That's it. So this is the framework of accounting standard. ये क्या है पूरा framework of accounting standards है. इस accounting standard में ultimately treatment will be in either asset side or liability side, or it is resulting in income or resulting in expenses, or ultimately resulting in equity increase or decrease. So accounting standard or Ind AS, whatever you learn, ultimately treatment will be in 5 items only: asset, liability, equity, income, expense. इसके बाहर कोई अकाउंट है ही नहीं ना. तुम्हारा अकाउंट पूरा किस में रह जाएगा अल्टीमेटली? तुम्हारा अकाउंट हमेशा ग्रिप में है तुम्हारे. असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, इक्विटी. इसके बाहर क्या देंगे बोलो अब, और नया क्या आएगा बोलो, इसी के बीच में रहेगा. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी इसी के बारे में डिस्कस कर रहा है आपका. सो विद दिस यूर फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर कंप्लीटेड. अब यहाँ से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स स्टार्ट होती है आपके. क्लियर? अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जब स्टार्ट करूंगा ना मैं, 90% आपको आ गया उससे पहले ही है, क्योंकि बेसिकली वो पढ़े उसमें आ गया है, कवर हो गया है वो. इफ आई स्टार्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, व्हेन आई फिनिश यू फील की तो ऑलरेडी 90% पहले ही हो गया है, बिकॉज बेसिक्स ऑलरेडी कवर्ड इन दिस. बिफोर स्टार्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, एनी स्टूडेंट हैविंग डाउट क्वेरीज इन फ्रेमवर्क, आई विल एक्सप्लेन once again. रियलाइज्ड अनरियलाइज का मतलब क्या है सुनो पहले. रियलाइज का मतलब है आप ऑलरेडी उसको रिसीव कर चुके हैं. अनरियलाइज का मतलब भी आना बाकी है, वैसा है उसका मतलब. अक्रूड है वो. क्या है वो? अक्रूड है वो. मतलब उसका ऐसा समझो आप. अनरियलाइज प्रॉफिट इज डिफरेंट. अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब है आप कोई आने का चांस ही नहीं है, वो आप क्रिएट कर ले रहे हो. वो क्या क्रिएट कर ले रहे हो आप क्रिएट कर ले रहे हो. समझ में आई बात? जैसे yesterday I given the example, inventory is valuing, cost of inventory 180, future net realizable value in future is or presently is what 200. So on balance sheet date you are valuing the inventory. So if you value the inventory at NRV 200 rupees, so how much extra profit will come? 20. But that profit you realized when you realize after sale, but right now you are not realizing now. So without realizing, if you calculate profit, then prudence is violated. What is violated? Prudence. But interest है. अब बैंक में जो है आप पैसे डिपॉजिट करके रखे, तो इंटरेस्ट रिसीव नहीं भी करे लेकिन आने वाला है तो नहीं डालते बुक्स में. आप डालते नहीं डालते? इस एग्जाम्पल के लिए एवरी 6 months को बैंक इंटरेस्ट देता समझो. बैंक विल गिव द इंटरेस्ट फॉर एवरी 6 months. 3 months हो गए, 3 months completed, and you are preparing your financial statement. So 3 months completed means bank has to give interest or not, but it will not credit in your account. उन्होंने कब करेंगे? 6 months के बाद. After 6 months it will credit in your account, but 3 months time completed. Now you are preparing financial statement, so 3 months interest will write or not. उसको accrued बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Accrued. Clear? तो वो रियलाइज नहीं करें ना अभी. आप कब रियलाइज करेंगे? वो 6 months में. अब बैंक वाले को बोलेंगे हाँ मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ, आप 3 महीने का इंटरेस्ट डालो मेरे अकाउंट में बोलकर. उन्होंने बोलेंगे मैं तो 6 months को डालता हूँ. समझ में आया?
तो अनरियलाइज गेन्स का मतलब ऐसा नहीं है वो, वैसा समझो आप नहीं तो निकाल कर लिख लो उसमें आप अक्रूड इंटरेस्ट बोलकर, या अक्रूड इनकम लिख लो उसको आप। ओके, चलिए और कोई डाउट है? असेट्स इंक्रीज हुए तो ओके, तो आपका मतलब असेट्स इंक्रीज हुए तो पैसे बाहर जाते हैं, तो उससे इनकम कैसे बढ़ता आपका? बराबर। सुनो अब जरा, आप समझो एग्जांपल के लिए एक जूस का दुकान चला रहे हैं। किसका दुकान चला रहे? कस्टमर बढ़े तो नई जूस मशीन खरीदते, या फिर जनरली कस्टमर कम हुए तो नया जूस मशीन खरीदते? बढ़े तो कस्टमर बढ़े तो रेवेन्यू बढ़ता नहीं बढ़ता, इसलिए वहाँ इनकम बढ़ रहा वहाँ पे। नई मशीनरी जब आती ना तो प्रोडक्शन ज़्यादा होता, सेल्स ज़्यादा होता, तो इनकम बढ़ता नहीं बढ़ता? असेट्स कब बढ़ाते आप भाई? आप पहले सिंगल 1 BHK में थे, आप मामूली एम्प्लॉय थे आप, उसके बाद आपका सैलरी बढ़ गया, किस में जाते आप? उसके बाद किस में जाते आप? विला में जाते आप। इनकम जैसे जैसे बढ़ेंगे आप अपग्रेड होते नहीं होते? तो अपग्रेड होने का मतलब आपकी तरक्की हो रही, डिक्रीज हो रहे आप? असेट्स बढ़ रहे तो आपकी तरक्की हो रही, डिक्रीज हो रही? तरक्की हो रही ना, तो फिर इनकम नहीं बढ़ेगा क्या? वो एंगल से सोचना, अपन अपना लेवल ऑफ एंगल चेंज करो। क्लियर? जैसे मेरे पास 2 तरह के सोचने वाले लोग रहते भाई। अब समझो मैं आपको बोला भाई फ्री के स्कीम्स में नहीं जाना, फ्री स्कीम्स अच्छे नहीं रहते, थोड़ा उनको गुस्सा आता, थोड़ा उनको सही दिखता वो। तो वैसे असेट्स के भी सोचने के 2 तरीके। असेट्स बढ़ने से पैसा ज़्यादा बोल रहे आप, पैसा जा रहा लेकिन इनकम तो बढ़ रही ना। वहाँ पे क्या बोल रहा हूँ ना, इनकम इंक्रीजिंग, कैश डिक्रीजिंग वर्ड यूज कर रहा क्या हूँ? क्या वर्डिंग यूज कर रहा हूँ पर इनकम इंक्रीजिंग बट कैश डिक्रीजिंग। कैश डिक्रीज होता है, इनकम तो बढ़ रहा ना, कैश तो पहले से है तुम्हारे पास, बट फ्यूचर में क्या बढ़ेगा? कम बढ़ेगा। कैश जा रहा अभी, बट फ्यूचर में क्या बढ़ेगा? कम बढ़ेगा। उसकी वर्डिंग बिल्कुल सही है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। कैश डिक्रीज होता बट इनकम बढ़ता, इनकम विल इंक्रीज। क्यों नहीं कर सकते? एसेट कितने में खरीद रहे नहीं कर सकते आप? इनकम क्यों नहीं कर सकते आप? आपको एक अंदाजा रहता है, वो रिलायबली मेजर्ड का मतलब है एग्जैक्टली नोबडी विल मेजर, बट ऑन एवरेज यू कैन मेजर, ऑन एवरेज यू कैन मेजर। अभी मैं केस का एग्जांपल नहीं दिया क्या? जैसे सुप्रीम आपको जज डिसाइड करे तो ये अमाउंट मालूम होता है, बट उससे पहले सीए आपको एक एश्योरेंस दे रहा है भाई पिछले 10 केसेस में और उस इंटरनेशनल केसेस में इतना अमाउंट डिसाइड करे, तो उसके हिसाब से इतना आपको हो सकता है। तो अंदाज़ा है वो एक तरह से, अकाउंट्स अंदाजे पे चलता है हर जगह पे। फिर आप जो है रिजल्ट आए तक वेट करना बोले तो पेंडिंग होता रहता है, फिर क्या होता है वो? पेंडिंग होता है। तो इनकम ईयर एंड में बनाते अपन, कब बनाते? ईयर एंड में। इनकम स्टेटमेंट कब बनता? ईयर एंड में बनता है। तो ईयर एंड में तक तो आपको इनकम कितना क्या नहीं मालूम पड़ता क्या? ईयर एंड तक इनकम कितना क्या नहीं मालूम पड़ता क्या? इनिशियल तो नहीं मालूम पड़ेगा भाई, तो ईयर एंड तक तो पड़ेगा ना मालूम। तो ईयर एंड में अपन कितना है वही लिखते अपन, ईयर एंड तक कितना इनकम आया वही लिखेंगे। आया सो इनकम ही लिखते अपन, या जो आने वाला है वही लिखते अपन। क्लियर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो इनकम ऑलरेडी कमा ली है वो लिखेंगे, या ऑलरेडी जो सेल कर दिए जिससे पैसा आने वाला है वो लिखेंगे। सेल ही नहीं करे तो कैसा लिख लेंगे आप? लिख सकते क्या वो? तो फिर वो वाला इनकम नहीं लिख सकते अपन लोग। इनकम इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन असेट का मतलब है असेट्स कब बढ़ते अपने? जब अपने बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ने वाला है। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए असेट बढ़ाते अपन, मशीन खरीदे हैं, गुड्स एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चर करते हैं। एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चर करने से इनकम बढ़ी नहीं बढ़ी आपकी? तो ईयर एंड में तक मालूम पड़ जाएगा आपको कितनी बढ़ी, वही लिखेंगे आप उसमें। ईयर एंड में असेट नहीं परचेस कर रहे अपन, असेट तो पहले खरीद ले रहे अपन। काय के लिए खरीद रहे? ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। ज़्यादा प्रोडक्शन करने से क्या हो जाएगा? इनकम बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। तो ईयर एंड तक पिक्चर क्लियर हो जाता है आपको, और जो बड़ा वही लिखेंगे आप। अंदाजे से भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, जो है वही लिख रहे आप। और कोई डाउट्स?
ये साइड से कुछ पूछना है पूछिए, अच्छे डाउट पूछिए वो लोग दोनों भी। यहाँ से कोई डाउट्स है, एनी क्वेरीज डाउट्स? नथिंग, ओके। चलिए, नाउ टोटल वी हैव 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स in numbers. Out of 29 accounting standards, generally students have to learn approximately 24 or 25 standards only. CA students and CMA students should learn 4 to 5 standards only. Clear? 4 से 5 स्टैंडर्ड CMA वालों को पढ़ना है, इनको 25 पढ़ना है, तो 20 स्टैंडर्ड ज़्यादा पढ़ना रहता है उनको। और 20 स्टैंडर्ड में से AS3, AS14, AS21, AS23, AS27, ये सब प्रैक्टिकल चैप्टर्स में कवर हो जाते हैं। किसमें कवर हो जाते हैं? प्रैक्टिकल चैप्टर्स में। बाकी के जो स्टैंडर्ड्स है वो प्योरली थ्योरी बेस्ड है, इंक्लूडिंग प्रॉब्लम्स। इसके ऊपर चैप्टर्स अलग से आते हैं आपको। क्या आएंगे? अलग से चैप्टर्स आएंगे आपको। ओके, वी हैव सेपरेट चैप्टर्स ऑन दिस। CMA स्टूडेंट्स को ये सब नहीं है, CMA स्टूडेंट को सिर्फ लिमिटेड स्टैंडर्ड्स है। तो कौन कौन से स्टैंडर्ड्स है? AS1 रहेगा उनको, AS10 रहेगा उनको, AS11 रहेगा उनको, 12 रहेगा उनको, AS16 रहेगा उनको, AS19 रहेगा उनको। क्लियर? CA वालों को सभी पढ़ना है आपको। यहाँ पे AS पढ़ना है, फाइनल में इंड AS पढ़ना है आपको, CA वाले बच्चों को, राइट? चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्लोजर? डिस्क्लोजर का मतलब क्या है? शो करना, करेक्ट आंसर। नाउ accounting policies means what? Name of the standard is disclosure of accounting policies. Disclosure already you correctly answered. Bhai, whenever we show something in systematic manner, that is called as what? Disclosure. Now question is, what is the meaning of accounting policies? करेक्ट आंसर आ रहा है यहाँ से। बोलिए बोलिए। रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन तो प्रिंसिपल्स है वो। रूल्स एंड रेगुलेशन के बदल प्रिंसिपल भी यूज करो, फिर भी ओके हो सकता आंसर आपका। बोलिए। प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ व्हाट? ओके, methods used by entity. Okay, so when entity prepares the financial statement, every entity will prepare financial statement now. So when entity prepares the financial statements, so while preparing the financial statements on assets, liabilities, incomes, expenses, they have to follow certain accounting policies. They have to follow certain accounting policies. Now, accounting policies means these are the policy documents. These are the policy documents. In these documents, methods, principles will be prescribed. Like what should be the appropriate method for tangible asset, what should be the appropriate method for revenue recognition, what should be the appropriate method for your intangible assets, like what should be the method of depreciation, how many options you have. So these are called as what? Accounting policies. So accounting policies means when financial statements are prepared, on what basis depreciation is charged, on what basis inventory is valued, on what basis revenue is recognized, on what basis expenses are recognized, on what basis property, plant, equipment is generally shown in books of accounts, on what basis intangible assets are shown in books of accounts. Clear? So those all
इंफॉर्मेशंस एंटिटी हैज टू शो इन नोट्स ऑफ अकाउंट्स. कहाँ पे दिखाना उसको? नोट्स ऑफ अकाउंट्स. कि ऑन व्हाट बेसिस डेप्रिसिएशन इज चार्ज, amortization has taken place, revenue is recognized, okay, intangible assets are amortized, clear, how many years useful life has been taken. ये सब कहाँ पे दिखाना पड़ेगा? उनको नोट्स पे दिखाना पड़ेगा. तो ये सबको क्या बोलते हैं अपन लोग? मेथड्स, एस्टिमेशंस, प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. क्लियर? एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू फॉलो दिस. रीजन इज व्हाट? सपोज यू आर ए यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यू आर ए यूजर ऑफ financial statement. Suppose you are understanding the financial statements of Reliance Industries and also you are understanding the financial statements of Reddy's Lab. आपको कैसे मालूम पड़ेगा रिलायंस कंपनी कौन सा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन करा, रेड्डीज लैब कौन सा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन करेगा? बैलेंस शीट में लिखा हुआ रहेगा क्या? वो क्या कहाँ पे रहेगा? फिर वो नोट्स में रहेगा. वो तो इन नोट्स दे विल मेंशन कि straight line method of depreciation is followed or WDV method of depreciation is followed. Clear? Similarly, suppose you are analyzing the financial statements of Hindustan Unilever. Also, you are understanding the financial statements of ITC Limited. So, inventory. So, Hindustan Unilever valuing the inventory according to FIFO method. ITC Limited maintaining inventory according to weighted average method. But if it is not disclosed in notes, user of financial statement can understand कि according to which method inventory is valued. That's why it will be disclosed in notes. It will be disclosed in what? Notes. The accounting policies means whenever financial statements are prepared, what methods they have used for depreciation, amortization, revenue recognition, what principles they have followed for estimating the useful life of assets, for estimating the provisions on debtor, is called as what? Accounting policies. Is called as what? Accounting policies. Clear? So all accounting, significant accounting policies, they have to disclosed in notes to accounts or after notes to accounts at one place. Clear? For what? For proper अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्लियर? तो देखिए इधर अब अकाउंटिंग पॉलिसीज आर स्पेसिफिक accounting principles, methods adopted by entity in preparation and presentation of what? Financial statement. अब ये तो मैं बोला तो किसको समझ में आता ही नहीं, क्या बोल रहे सर ये बोलते आप, इसलिए मैं क्या कर रहा है डायरेक्ट एग्जांपल्स दिया आपको मैं. जैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, उसमें कितने मेथड्स रहते हैं? फीफो है, वेटेड एवरेज है, स्टैंडर्ड है, और भी मेथड्स रहते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा मेथड यूज करा? विच मेथड हैज बीन यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन? ओके, दैट इज अकाउंटिंग पॉलिसी. उसको क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग पॉलिसी. जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज करा, तो उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की भाषा में मेथड नहीं बोलते, अकाउंटिंग पॉलिसी बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? अकाउंटिंग पॉलिसी. तो रिलायंस इंडस्ट्रीज सपोज चार्जिंग डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूडीवी, तो आप क्या बोलेंगे? डब्ल्यूडीवी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर पीपी. अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज फॉर पीपी. तो जो भी मेथड फॉलो करेंगे उसको क्या बोलेंगे अपन? अकाउंटिंग पॉलिसी. जो भी प्रिंसिपल उन्होंने फॉलो करा क्या बोलेंगे उसको अपन लोग? अकाउंटिंग पॉलिसी. क्लियर? जैसे नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स को कॉस्ट पे भी मेजर कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन पे भी कर सकते हैं, फेयर वैल्यू पे भी कर सकते हैं. देयर इज नो कंपल्सरी ऑब्लिगेशन इन लॉ और इन स्टैंडर्ड. फिक्स्ड एसेट्स कैन बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑल्सो, इट कैन बी वैल्यूड एट रिवैल्यूएशन ऑल्सो, इट कैन बी वैल्यूड एट मार्केट वैल्यू ऑल्सो. मार्केट वैल्यू मीन्स फेयर वैल्यू. ओके, so at what value they are valuing the fixed asset, that is also accounting policy of the organization. Suppose cost पे करना चाह रहे वो लोग, तो ये उसका पॉलिसी हो गया. नहीं, वो लोग रिवैल्यूएशन पे करना चाह रहे तो ये भी उनका पॉलिसी है. अंडरस्टैंड? सिमिलरली
डेप्रिसिएशन है, समझिए, स्ट्रेट लाइन यानी चली खवा है, देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज सेलेक्टेड वेटेड एवरेज मेथड ऑफ इन्वेंट्री फॉर वैल्यूएशन, द सेम इज डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्या हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज का अकाउंटिंग पॉलिसी हो गया। क्या हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज का अकाउंटिंग पॉलिसी हो गया। अब नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इन टू डिफरेंट वेज, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट, प्रोपोर्शनेट कंप्लीटेड ऑल्सो। तो ये AS7 में पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे आप ये AS7। भाई कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के रेवेन्यू कंप्लीट होने पे रिकॉग्नाइज होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट के रेवेन्यू जैसा जैसा कंप्लीट हो वैसा भी रिकॉग्नाइज हो सकते हैं। ये कहाँ पर पढ़ेंगे आप, सम कॉन्ट्रैक्ट्स रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर कंप्लीशन ओनली, सम कॉन्ट्रैक्ट्स रेवेन्यू कैन बी रिकॉग्नाइज एट स्टेज वाइज ऑल्सो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप CA या CMA का अपने नाम में कब ऐड करते हैं, आप पूरा पास होने के बाद ही। क्लियर, उससे पहले लिख सकते क्या आप, नहीं लिख सकते आप। तो रेवेन्यू भी पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ही रिकॉग्नाइज करना पड़ता कुछ एरियाज में। इन सम एरियाज अकॉर्डिंग टू स्टेज वाइज ऑल्सो यू कैन रिकॉग्नाइज। तो दिस विल बी कवर्ड इन AS7। अंडरस्टैंड। अब गवर्नमेंट ग्रांट है, गवर्नमेंट ग्रांट में जो है इसके भी दो ट्रीटमेंट होते हैं, या तो आप असेट में से माइनस कर सकते हैं या फिर जो है आप उसको डेफर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डेफर भी कर सकते हैं। AS12 में रहता है, कहाँ पर कवर रहता है, AS12। तो डेफर्ड इनकम मेथड ऑल्सो यू कैन यूज, कैपिटल अप्रोच ऑल्सो यू कैन यूज। दो अप्रोच रहते हैं, इनकम अप्रोच, कैपिटल अप्रोच। AS11 में कितने अप्रोच रहते हैं, 2 अप्रोचेस, कैपिटल अप्रोच, इनका। अभी आप नहीं पढ़े इसलिए आपको ये बात समझ में नहीं आती। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ही नहीं मालूम, 12(7) क्या मालूम है, मालूम है क्या उसमें क्या है? वो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। अभी कब समझ में आएंगी ये बात आपको? पूरे पढ़ने के बाद। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, 2 अप्रोचेस आर देयर, कैपिटल अप्रोच, इनकम अप्रोच। So capital approach also accounting policy, income approach also accounting policy. See, fundamental accounting assumptions are 3 only. Any organization which is preparing the financial statement, they will have 3 fundamental, they have to follow 3 fundamental accounting assumption. Going concern, consistency, accrual. But accounting policies are not having single list. Options are available here. जैसा FIFO करना है, weighted average करना है, उनका मर्जी है। FIFO से भी कर सकते हैं, वेटेड से भी कर सकते हैं। SLM, WDV, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, चॉइस अवेलेबल। कैपिटल अप्रोच, इनकम अप्रोच, चॉइस अवेलेबल। हिस्टोरिकल कॉस्ट, रिवैल्यूएशन मेथड, मार्केट वैल्यू, चॉइस अवेलेबल। बट फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन सेम है, सबको सेम है वो। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस आर सेम टू ऑल, बट अकाउंटिंग पॉलिसीज चॉइस अवेलेबल विथ मैनेजमेंट। So there is no single list of accounting standard accounting policies. Accounting policies are multiple optional, multiple options available यहाँ पर. You can use any option according to the decision of management. समझ में आया ये पॉइंट? अब इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं अपन लोग, तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विचएवर लोअर करते हैं अपन लोग। क्लियर? तो किससे करे वो भी लिखना पड़ता फाइनेंशियल में आपको, कॉस्ट पे करे या नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे करे। क्लियर? सिमिलरली रेड्डीज लैब स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कर रहा है, ये भी इसका क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी है ये। तो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्लोजर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। आया समझ में? या फिर से रिपीट करूं? क्लियर है? अकाउंटिंग पॉलिसीज क्लियर? Next, second point which we have to cover is benefits of disclosure of accounting policies. Accounting policies disclose करने के फायदे क्या है? अभी थोड़ी देर पहले बोला मैंने कि for better understandability disclosure of accounting policies required. Disclosure of accounting policies required. Clear? Suppose for example you went to examination center. You went to examination center.
तो पहले बाहर सीए का बैनर लगा हुआ है तो आपको मालूम पड़ता है कि यहाँ सेंटर है, तो कंफ्यूजन में रहेंगे ना, यही है नहीं बोलकर आप। तो पहले सी इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, बाहर एक बैनर लगाते हैं जिससे कि बच्चों को पता लग जाना कि सेंटर है, डिस्क्लोजर है वो। क्या है वो? डिस्क्लोजर है। क्यों लगा रहे वो लोग बैनर? बच्चों को आसानी से समझ में आना बोल के यहाँ पे सेंटर है। फिर अंदर जाने के बाद क्या रहता है, और एक बोर्ड रहता है, उसमें क्या रहता है, रोल नंबर की लिस्ट रहती है और रूम नंबर रहता है, वो भी क्या है, डिस्क्लोजर है। किसके लिए है वो? अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए। तो डिस्क्लोजर करने से क्या हो रहा है, आपका काम समझने में आसानी हो रही है आपको। वही लिखे सो पहला पॉइंट देखिए यहाँ पर, बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। To disclose the accounting policies, user of financial statement can understand easily by which method of depreciation followed, which method of inventory valuation followed, according to which method revenue recognized, according to which method grant has been treated, according to which method assets are recorded, according to which method generally intangible assets are recorded. So all these are disclosed in the notes. कहाँ पे डिस्क्लोज करेंगे वो लोग? नोट्स में, जिससे कि यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आसानी से मालूम हो जाना हर चीज। अब क्या मालूम होता है इसमें कि आने वाले समय में इनकम बढ़ने वाला है, कम होने वाला है, बिजनेस की तरक्की होने वाली है, कम होने वाली है। यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या चाहिए? कंप्लीट इंफॉर्मेशन, वॉट एवर इज नेसेसरी फॉर हिज डिसीजन। तो डेप्रिसिएशन इंक्रीजिंग मीन्स नेक्स्ट ईयर यू विल थिंक कि प्रॉफिट डिक्रीज। अब देखिए रेवेन्यू इज नॉट इंक्रीजिंग बट डेप्रिसिएशन इंक्रीजिंग, तो अल्टीमेटली व्हाट विल डिक्रीज? प्रॉफिट। तो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल चेक ऑल दिस पॉइंट्स इन नोट्स ऑल्सो, कि इससे प्रॉफिट बढ़ेगा, कम होगा, फ्यूचर में क्या होने वाला है, एक जजमेंट आता है उसको। क्या आता है? एक जजमेंट आता है। तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी दिस विल बी यूज्ड। नेक्स्ट, कंपैरिजन करने में आसानी होती है। इसमें आसानी होती है कंपैरिजन। जैसे कि सेम अमाउंट ऑफ असेट्स इज परचेज बाय सन फार्मा कंपनी, सेम अमाउंट ऑफ असेट इज परचेज बाय सिप्ला कंपनी, बट सन फार्मा कंपनी इज प्रोड्यूसिंग मोर रेवेन्यू, सिप्ला कंपनी प्रोड्यूसिंग लेस रेवेन्यू। तो जनरली इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट इन सन फार्मा। सिप्ला मैंने लगा था पैसे उन्होंने, सिप्ला इज ऑल्सो फार्मास्यूटिकल, सन फार्मा इज ऑल्सो फार्मास्यूटिकल, but user of financial statement will invest in Sun Pharma. Why? Sun Pharma company also using the same amount of assets, Cipla company is also using the same amount of assets, but revenue generation pattern of Sun Pharma is comparatively high, Cipla is less. Cipla के पास भी 100 करोड़ का एसेट है, Sun Pharma के पास भी 100 करोड़ का एसेट है, बट Cipla का रेवेन्यू थोड़ा कम है, Sun Pharma का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है। असेट्स तो दोनों यूज़ कर रहे हैं 100-100 करोड़ के, तो आप फिर किस पे लगाएंगे पैसे? सन फार्मा में लगाएंगे आप। तो कंपैरिजन के लिए भी यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? कंपैरिजन के लिए। समझ में आया ना? अभी आप छोटे हैं, शेयर मार्केट में बड़े बड़े दिग्गज लोग पैसे कमा लेते जी। आप सही अगर सिस्टमेटिक सब्जेक्ट पढ़ के गए तो आप पहले दिन से पैसे कमाते। आप पहले दिन से ही। अब जी न्यूज़ पे, CNBC पे बड़े बड़े लोग बैठे हुए रहते ना, वो भी देख के आओ। मैं भी क्लास में बोलता हूँ, दोनों देख के आओ। मैं जो शेयरों बोलूँगा उसमें पैसे लगाओ, वो लोग जो बोल रहे हो उस पर पैसे लगाओ। मेरे में कमाई रहेंगी, उनमें नहीं रहेंगी। फिर बच्चे बोल रहे सर आप क्यों नहीं आ रहे जी न्यूज़ पर? मैं पढ़ाने की लाइन में हूँ ना, वो लोग इन्वेस्टमेंट की लाइन में है, तो इन्वेस्टमेंट की लाइन वालों को बुलाते वो लोग। लेकिन नॉलेज तो हमारे को भी है ना, हम भी तो पढ़े, CA कोर्स, CMA कोर्स दोनों पढ़े, ट्रेनिंग करे, सब करे, मार्केट में पैसे लगा लगा कर हम भी धक्के खा के सीखे। ऐसा थोड़ी ना कि हम पहले दिन से पैसे कमाए, हम भी लॉस हुए, फिर बाद में समझे मार्केट को। ओके, तो सब्जेक्ट अगर अच्छे से समझ लिया आप तो लॉन्ग टर्म में पैसे कमा सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी कमा सकते हैं। क्लियर? देखो आप कभी मैं जो शेयर्स बोल रहा हूँ उसमें पैसे लगा कर देखो आप, बाद में आपको गेन होता नहीं होता मालूम पड़ा। ये क्लास बैच में तो प्रूफ कर दिया मैं, वो जो शेयर्स बोला पूरे में पैसे कमा के दिखाया आपको मैं।
पूरे लोग उससे पहले के बैच में तो लोग क्या बोले थे मालूम, अदानी के शेयर बेच देना बोले थे, अदानी के शेयर बेच दो बोले। आपका बैच नहीं, उससे और पहले का बैच, वो तो छोड़ो, आप अपने इंडायरेक्ट टैक्स पढ़ाने वाले सर भी बोले बेच देना बोले। उनको बोला आपको बेचना है तो बेच लो, मैंने बेचता हूँ बोला उनको, क्योंकि अदानी कंपनी का प्रमोटर हॉनेस्ट है, कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है उसका। फंडामेंटल क्या है बहुत, तो कैसा डूबती कंपनी फिर। हिडनबर्ग का इंडिया का है क्या? हिडनबर्ग यूएस का है, यूएस का एक सटोरी है, वो शॉर्ट करता, पूरे शॉर्ट सेलिंग्स करता हूँ, तो उसके फायदे के लिए शॉर्ट करा दिया उन्होंने अदानी के शेयर्स। लोग बेचारे जो रिटेल इन्वेस्टर से बेच के लॉस में आ गए। अदानी ग्रुप के सामने हिडनबर्ग एक चिमटी के बराबर भी नहीं है, उन्होंने तो बड़ा ग्रुप है अदानी ग्रुप। लोग उसके बाद में आके बेच लिए शेयर, लॉस में आ गए। उस टाइम पे तो उल्टा में ज़्यादा शेयर खरीदा और अदानी की, लोग बेचे तो अपन खरीदना, लोग बेचे तो क्या करना अपन लोग खरीदना, वही तो मौका रहता फिर। हाँ, वहाँ पर रिस्क भी हो सकता, रिस्क भी हो सकता, रिस्क है तो ही फिर मजा है ना, रिस्क है तो ही रिटर्न आता फिर। लोग 1000 की चीज 600 में बेच दिए, खरीद लो आप, फिर बाद में वो 600 रुपये कितने हो गए, 1200 हो गए, वो कितने हो गए, डबल हो गया वो। वही तो है फिर, सब्जेक्ट सही पढ़े तो नॉलेज आता। कई पढ़े लिखे लोग, सीए लोग भी बेच लिए शेयर, बड़े बड़े 15-20 साल एक्सपीरियंस वाले भी बेच लिए, सीएमए ग्रेस वाले, सीए ग्रेस वाले, अदानी के नाम से डर गए वो लोग। वो लोग क्यों डर गए पता नहीं। और चैनल में जितने भी लोग बैठे हुए पूरे नेगेटिव ही बात करे उसके खिलाफ, सिर्फ मैं अकेला ही हूं जो पॉजिटिव बात करा। ऐसा बात करा वो, फिर मैं, मेरे पास उतना कॉन्फिडेंस कहां से आया? मोदी है तो मुनपिन है, समझ में आया? क्योंकि उसके पूरे काम अच्छे हैं उसके अदानी के, तो मोदी भी सपोर्ट करेगा उसको। गलत है तो ना बिल्कुल सीधा ईडी के ऑर्डर पास करा था। तो इसलिए मेरे को कॉन्फिडेंस था कि कंपलसरी इसके शेयर्स बाउंस बैक होते। अब क्या हो गया सिचुएशन मालूम है? म्यूचुअल फंड कंपनी वाले जो है आईटी कंपनी के शेयर्स बेच के अदानी में लगा रहे पैसे। इसमें लगा रहे, आईटी कंपनी के शेयर्स बेच के अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप ये सब्जेक्ट सिर्फ मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़ रहे, पैसे कमाने के लिए भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये। और जनरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो मेन कोर एरिया है, क्योंकि पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे समझ में आता है, सही समझ में आता, इसे ठीक से पढ़ो। तो कंपैरिजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, देखिए, दो कंपनीज है, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, बोथ कंपनीज आर परचेजिंग वन कार, हाउ मच, 10 लाख रुपीज। वन कंपनी इज चार्जिंग depreciation of 1 lakh rupees, another company is charging depreciation of 2 lakh rupees. Now it is difficult to understand financial statement without knowing the accounting policy of depreciation. अब इन सिर्फ दोनों को देख क्या बोल देंगे क्या कौन सी कंपनी का क्या अकाउंटिंग पॉलिसी है? नहीं बोल सकते। क्यों? देखिए, एक कंपनी में लाइफ 10 ईयर्स हो सकती, एक कंपनी में लाइफ जो है 5 ईयर्स भी हो सकती। देखिए 10 lakhs डिवाइड बाई 5 कितना हो रहा है डिप्रिसिएशन? तो 10 लाख डिवाइड बाई 10 कितना हो रहा है? 1। तो इसका एस्टिमेटेड लाइफ डिफरेंट, इसका एस्टिमेटेड लाइफ डिफरेंट, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ना। बट यहां पर वो नहीं है, यहां पर है वो ओनली दे मेंशन व्हाट, कार इज परचेज फॉर 10 लाख, डिप्रिसिएशन हाउ मच, 1 लाख 2 लाख। बट 1 लाख 2 लाख रुपीज डिप्रिसिएशन पॉइंट यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू एग्जैक्टली नो व्हाट इज द एस्टिमेटेड लाइफ, व्हाट इज द एस्टिमेटेड लाइफ। If estimated life of first car is 10 years, then 1 lakh depreciation. If estimated life of second car is 5 years, then 2 lakh depreciation. Or in other words, depreciation percentage of first company is 10%, second company is 20%. So first company का rate of depreciation is less, second company rate of depreciation is more. So in notes they will mention this. After that you will understand कि okay, company is following 10% straight line method for first, then 20% WDV method for second.
Clear? Then you can take your decision properly. This is the importance of the accounting policies. After this you can take your decision correctly. Okay? समझ में आया ये? चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर दी कंसिडरेशंस. व्हाट आर दी कंसिडरेशन? देयर आर टू कंसिडरेशन, प्राइमरी सेकेंडरी. प्राइमरी में रहता है ट्रू एंड फेयर, सेकेंडरी में रहता है मेटेरियलिटी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, प्रूडेंस. तो नेक्स्ट क्लास विल कंप्लीट दिस. तो अच्छे से पढ़ो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. देखिए आपको शेयर मार्केट में बहुत फायदा होगा इससे. शेयर मार्केट में फाइनल पास होने तक तो आप खुद नॉलेजेबल बन जाएंगे कैसा इन्वेस्ट करना.